Hi all, welcome to my channel Green World Investor, a one-stop shop for personal finance needs for beginners. I am Sneha and today's topic for discussion is InvIT investing in India. So in this video, we will see what InvITs are, what are the different assets in which it invests into, who are the major players of invest in India, what are the different future prospects for InvITs in India, what are its advantages, what are its disadvantages, and how you as an investor can benefit out of investing into this asset class in India. So let's begin the video. So InvITs or infrastructure investment trust are investment products that focus on the infrastructure part in India और इसकी risk profile equity और debt के बीचों बीच होती है. It's neither very risky nor lower, like very just like debt. So it lies somewhere in between equities and debt. Now, InvITs, just like shares and ETFs, are easily traded on the stock exchange. So it has become very convenient for us as investors to own a part of different large infrastructure projects in India by investing into its unit through the Indian Stock Exchange. Also, InvITs as an investment solution was launched as a win-win solution for both sponsors and investors. कैसे? क्योंकि sponsors like Power Grid could monetize their high income generating assets, and we as an investor could benefit out of this safe income yield from these low risk assets. हम आगे देखेंगे वीडियो में कि कैसे होता है, कि कैसे स्पॉन्सर्स अपने एसेट्स को मोनेटाइज करते हैं और हम कैसे उसको उससे बेनिफिट लेते हैं. Also, InvITs they bundle 10 to 20 of the large infrastructure assets and they into a portfolio and sell it to investors. और ये किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशंस, रोड्स हो गए, ट्रांसमिशन लाइंस हो गई, इस तरह के लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ये बंडल करके एक पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टर्स के लिए तैयार करते हैं. Also, InvITs allow investors to play the huge infrastructure story, growth story in India, क्योंकि India is such a growing country with huge demands, huge population, कि there will be and there is a huge growing demand for infrastructure. हमें अच्छे roads चाहिए, हमें अच्छी power lines चाहिए, हमें climate change को ध्यान रखते हुए renewable energy पे focus चाहिए. तो हमें काफ़ी जैसे जैसे सिटीज बढ़ेंगे, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स बढ़ती जाएंगी. तो इंडिया में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी है काफी सॉलिड है. According to the Indian government's pipeline of infrastructure projects, it is estimated that about 1.4 trillion US dollars का फंडिंग चाहिए इंडिया को बाय 2025 एंड अ लॉट ऑफ दिस इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इनविट्स. सो ये इनविट्स की जो काफी स्ट्रॉन्ग टेलविंड है, स्पेशली इन आवर कंट्री, इन सच अ सॉलिड ग्रोइंग कंट्री इन इंडिया. आप देखो क्या कि हमारे जो रोड्स हैं उनमें कितनी बढ़िया, यू कैन सी द डिफरेंस की जो एक डेकेड पहले के जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो पावर लाइंस जैसी थी, रोड्स थे, टोल रोड्स थे या हाईवेज थे. You can see the amount of work that is being done and you can just imagine the kind of investment जो आगे भी होगा. तो इसीलिए I feel कि infrastructure is a very strong growth point in India and InvITs will allow investors to play that growth story in India. So how did InvIT come into being? So InvITs were launched by a SEBI notified regulation in 2014. और just like REITs पे हमने एक और वीडियो किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देखें. तो जैसे इनविट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे फोकस करती है, REITs रियल एस्टेट पे फोकस करते हैं. तो जस्ट लाइक REITs, इनविट्स आर ऑल्सो गवर्न बाय सम ग्राउंड रूल्स, जैसे कि at least 80% of the portfolio should be in completed assets. अगर completed assets नहीं होंगे, अगर आपने जो इन्विट में फोकस किया है वो अभी रोड बन ही रही है वहां, तो आपको उसके टोल ब्रिज से आपको लाइक रोड विल नॉट अर्न एनीथिंग, द होल प्रोजेक्ट विल नॉट बी इनकम जनरेटिंग. तो इन्वेस्टर्स को कैसे पैसे मिलेंगे? तो एटलीस्ट इनका जो रूल है कि एटलीस्ट 80% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट शुड बी इन कंप्लीटेड एसेट्स.
कंप्लीटेड एसेट्स होंगे तो आपको उसमें से रेगुलर इनकम जनरेशन होगा, एंड दिस वे the investors will get the dividends out of it, and 90% of the income of InvITs should be distributed as dividends to investors. तो ये काफी हमारे REITs में भी इस तरह के ही ग्राउंड रूल्स थे, और वो सिमिलर रूल्स हमारे InvITs में है। तो आप देखिए इतना बढ़िया आपको एक सेफ इनकम यील्ड मिलता है, और किससे मिलता है? जो इनके लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के या कंपनीज के, बिकॉज InvITs कैन बी बोथ यू नो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओन। सो जो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं कंपनीज के, उससे आपको ये सारे मिलते हैं। जैसे कि पावर ग्रिड की जो आप देखें ट्रांसमिशन लाइन्स है, बन गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, अब वो इनकम जनरेट कर रही है। या फिर आप देखें कोई भी टोल रोड है, उसके जो टोल कलेक्शन हो रहे हैं, वो उस एसेट का इनकम है, तो उससे आपको इनविट पे कर रहा है। आई मीन यू आर गेटिंग द डिविडेंड्स आउट ऑफ इट। तो इस तरह से जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने एसेट्स को मोनेटाइज करती हैं और उसका एक इनविट बना देती है, और इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और उस इनकम जनरेशन का 90% they have to distribute as dividends to investors. So this makes it a solid income yield for the investors, and also जो कंपनियां हैं वो अपने एसेट्स को इस तरह से मोनेटाइज कर सकती हैं। सो ये हमने बात की the ground rules, the basics, how it works and all. अब हम देखते हैं कि who are the major players of InvITs in India. So there are 7 major players of InvITs in India. जैसे पावर ग्रिड हो गई, वो ट्रांसमिशन लाइंस पे फोकस करती हैं। उसी तरह एक और कंपनी है वेरिसिएंट, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करती है। वैसे ही IRB है जो रोड्स पे फोकस करती हैं। तो इस तरह से ये काफी कंपनीज हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करती हैं, और एज यू विश, जैसे मैंने पहले बोला, गवर्नमेंट ओन्ड भी हो सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्ट भी हो सकते हैं। सो एज यू विश आप उस पे देख के इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इनकी जो हिस्ट्री है वो अराउंड 6 to 7 years है, जिसमें परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है, यील्ड्स काफी अच्छे रहे हैं। सो आप वो देखकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पावर ग्रिड है वो सबसे बिगेस्ट प्लेयर है इस फील्ड में, और जो IRB है और एक ग्रिड ट्रस्ट, वो दे आर दी ओल्डेस्ट इन दिस सेक्टर। तो ये हो गया इनविट्स के परफॉर्मेंस और हु आर द मेजर प्लेयर्स इन दिस सेक्टर, तो वो आप देख सकते हैं। Let's take a look at the different pros and cons of investing into InvITs. तो सबसे पहला इनका जो एडवांटेज है कि इट कॉल्स फॉर अ लो टिकट साइज। तो इसमें क्या होगा कि एटलीस्ट 10 to 15,000 आप इन्वेस्ट करके you can partly own ownership of such huge infrastructure projects in India. Suppose कि जो रोड कंपनी है उसने एक टोल ब्रिज के ऊपर, आई मीन टोल रोड्स के ऊपर एक इनविट बना दिया, तो समझिए आपने अगर 10-15 हजार देकर एक ओनरशिप ली है उसमें, तो यू आर द ओनर ऑफ दैट मच परसेंट दैट ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट इन इंडिया। तो लो टिकट साइज, अदरवाइज क्या आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट के कुछ भी ओनर बन सकते थे? नहीं। but with InvIT you can partly own a part of such huge projects in India. So the ticket size is very low, from only 10 to 15K. Also it offers for a good diversification. आप पब्लिक कर सकते हो, आप प्राइवेट में कर सकते हो, आपको जो एसेट्स क्लास पसंद है आप उसमें कर सकते हो। तो आपके, और इस तरह से आपका जो एसेट एलोकेशन है आपके पोर्टफोलियो में, उसमें भी आपको वो काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देगा। ऑल्सो इट कॉल्स फॉर अ हाई इनकम यील्ड। क्यों? क्योंकि आप आराम से जो इसकी यील्ड है वो 6 to 8% होती है, एंड इट ऑल्सो कॉल्स फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन। तो इस तरह से जो इनकम यील्ड है इन्वेस्टर्स का वो काफी अच्छा हो जाता है। ऑल्सो काफी लो रिस्क है, बिकॉज ये एसेट्स जो है बन गए हैं, मच्योर्ड है, कंप्लीट है, और इनकम जनरेटिंग है। सो ये सारे हैं इसके फायदे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके कॉन्स क्या हैं। तो कॉन्स में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है। तो इससे क्या होता है कि कुछ भी पॉलिसी रिस्क या रेगुलेटरी रिस्क आ सकता है इसमें। जैसे कि in 2016 the Allahabad High Court had
stop the toll collection on D&D toll bridge in Noida. तो इससे क्या हुआ कि वो इनकम जनरेशन रुक गई, तो फिर वो इन्विट आप मतलब अगर उस पे बनता तो आपको उस पे कुछ फायदा नहीं होता। तो इस तरह से जो ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस है कभी कभी अगर क्रेजी हो जाए तो फिर आपका नुकसान हो सकता है उस केस में। दूसरा जो इनके टैक्सेशन पार्ट है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आपके बुक्स में डिफरेंट टाइप जो कंपोनेंट्स होंगे उस पे अलग अलग टैक्स लगेगा। कैपिटल अप्रिसिएशन पे अलग होगा, डिविडेंड पार्ट पे अलग होगा, लोन रीपेमेंट पे अलग होगा। So because of these complexity in taxation, they have become less lucrative for investors in recently compared to the other. Also execution risk होता है, जैसे कि आपने एक इन्विट बना तो दिया, सपोज किसी टोल रोड पे इन्विट आपने शुरू कर दिया, आई मीन कंपनी ने, पर अगर उस रोड पे ट्रैफिक नहीं है या फिर आपने पावर लाइंस पे इन्विट बना दिया पर सपोज उधर डिमांड नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, तो अगर ऐसा होगा तो एसेट्स में इनकम जनरेशन नहीं होगी फॉर द एंड इन दैट केस आपका जो ये 90% वाला रूल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस वो आपको कुछ लुक्रेटिव इनकम नहीं होगी। सो यू शुड ऑल्सो जो इनके एक और जो इनका प्रो कॉन है वो ये है कि ये जो एसेट्स हैं ये 15 to 30 years कंसेशन पीरियड होता है, तो इसके वजह से तो आपको टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करना होगा और देखना होगा कि आपको कहाँ से कहाँ अपना यू हैव टू मूव योर एलोकेशन, क्योंकि जरूरी नहीं है वो एसेट हमेशा के लिए आपको देता रहे इनकम। सो यू हैव टू रिविजिट एंड बैलेंस योर पोर्टफोलियो कि अभी कौन सा। सो इन दिस वीडियो वी सॉ व्हाट इनविट्स आर, हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि हमारे को वो अच्छा इनकम यील्ड दे रहा है और स्पॉन्सर के लिए भी फायदा है क्योंकि उसके जो मेच्योर एसेट्स है, इनकम जनरेटिंग एसेट्स है, उसको वो मोनेटाइज कर पा रहे हैं। ऑल्सो इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर growth story है वो huge है। So we have seen the different pros, we have seen the different cons of investing into an InvIT. Now let's see how we should choose. जैसे हमने पहले बोला कि major 7 players in India में, of them IRB and India Grid Trust are the oldest, Power Grid is the largest, there's another one on roads, IRB, and there is another one on renewable energy like Verisent. तो how will you know कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है? So सबसे पहले तो आप जैसे हमने REIT में देखा था कि जैसे हम शेयर्स में इन्वेस्ट करने के पहले कंपनी की बैक स्टोरी देखते हैं, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं, उसके वैल्यूएशंस देखते हैं, उसी तरह फॉर इन्वेस्टिंग इनटू इनविट्स आपको कुछ एक पॉइंटर्स हैं जिस पे फोकस करना होगा। सो व्हाट आर दे? तो सबसे पहले आप देखिए किस टाइप ऑफ एसेट्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर उनकी लाइक उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है वो किस टाइप के एसेट्स में, आधे इनकम जनरेटिंग, आधे अभी शुरू हुआ है, या फिर आधे गोइंग टू एक्सपायर, उनकी लीज टर्म कितनी है, कितने रिमेनिंग पीरियड बचा है आपके उनके प्रोजेक्ट में। सो ऑल दीज पॉइंट्स यू शुड सी। ऑल्सो यू शुड चेक द पेडिग्री ऑफ द स्पॉन्सर, उसकी रेपुटेशन क्या है इंडियन मार्केट में, उसके शेयर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऑल दीज पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड। ऑल्सो आप देखिए कि जो प्रोस्पेक्ट्स हैं ऑफ द सब सेक्टर, सपोज फॉर एग्जाम्पल रोड्स, वो कैसे हैं, वो अपने कैसे हैं। जैसे ओवरऑल अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ हाईली ग्रोइंग एंड लुक्रेटिव सेक्टर इन इंडिया राइट नाउ। पर अगर उसमें आपका जो सब सेक्टर है जिसमें वो इन्विट फोकस कर रहा है, उसकी आप एक बार ग्रोथ स्टोरी देखिए, उसमें क्या आगे होना है, हो गया और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है। सो ऑल दीज पॉइंटर्स यू शुड कीप इन टू माइंड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यूएशन इज important. So check for valuation of the InvITs. अगर वो ज़्यादा है so wait for the correction to enter. So all these pointers you should keep into mind before investing into an InvIT. So that was all from my side. I hope you like my video. It was a very basic video focusing just on the surface पे हमने देखा कि players क्या है, valuation क्या है, कैसे काम करता है, क्या pros है, क्या cons है, क्या future prospects है। लेकिन if you want we can do a detailed on one by one. If you are interested, please comment on the video. Also write us an email to greenworldinvestor@gmail.com. I hope you like my video and I hope to see you again. Please like my video, subscribe to my channel and share it with others. Have a nice day. Bye.